ملا ہے. یہاں تو چاہے عقیدہ کتنا ہی خراب ہو لیکن اگر آدمی استنجے کے لیے بیٹھے تو ٹوپی لگا لے, اس لیے کہ ٹوپی نہیں لگائے گا تو ذرا حافظہ اس کا کمزور ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا. لہذا آدمی جب استنجے کے لیے بیٹھتا ہے تو ٹوپی نہیں ملتی تو دستی نکال کر کے رکھ لیتا ہے, اور دستی بھی نہیں ملتی تو ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ سب کے سامنے ایک بہت ہی خاص عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں. وہ ہے ٹوپی. کہ ٹوپی کیا ہے, لوگ ٹوپی کیوں لگاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ٹوپی لگانے کو فرض سمجھتے ہیں. کہیں پر بھی جاتے ہیں, پیشاب کرنے جاتے ہیں تو بھی ٹوپی لگاتے ہیں, پائخانہ کرنے کے لیے لیٹرین جاتے ہیں تو بھی ٹوپی لگاتے ہیں. کہ ٹوپی کو ایک دم سر پہ لگانا فرض سمجھ کے رکھا ہے کہ ٹوپی لگائے بغیر کوئی کام ہی مت کرو. ایسے لوگ ہیں. تو ٹوپی لگانا کیسا ہے, جائز ہے, کیا ہے, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, اس کے متعلق آج میں بتانے والا ہوں. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میرا ایک دوست تھا, اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک دن اپنے گاؤں کی ایک مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا. تو پیچھے سے ایک شخص بولا, تم نماز مت پڑھا, تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اسے ذلیل کر کے مصلی سے پیچھے کھینچ لیا اور اس کو نماز پڑھانے نہیں دیا. لوگ ٹوپی کو بہت ہی سیریسلی لے کے رکھا ہے. آخر یہ ٹوپی لگانا کیسا ہے, لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے, اور کہاں لگانا چاہیے, کیوں لگانا چاہیے, اور ہم لوگ جو ٹوپی لگاتے ہیں وہ کیوں لگاتے ہیں؟ کیا ہم لوگ ٹوپی سنت سمجھ کے لگاتے ہیں, واجب سمجھ کے لگاتے ہیں, یا فرض سمجھ کے لگاتے ہیں, یا ایسے ہی خوبصورتی کی وجہ سے لگاتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کچھ علماء کی رائے لیں گے, کچھ علماء کو سنیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک, جس کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں ہے, جو ہر ایک بات دلائل سے پیش کرتے ہیں, اس کو سنیں گے. پھر علامہ جلال الدین قاسمی صاحب کو سنیں گے, جو ہر ایک بات حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بتاتے ہیں. یعنی حدیث پوری طرح حدیث پڑھتے ہیں, پھر واضح کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. کہ تو ٹوپی کے متعلق آج انہیں ہم لوگ سنیں گے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم لوگ سنتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک. ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھانکنا. سر کو ڈھانکنے میں اختلاف ہے. کوئی نہیں کہتا فرض ہے, کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا کہ سر کو ڈھانکنا فرض ہے. اس میں اختلاف ہے, کیا یہ مستحب ہے, سنت ہے. اکثر علماء کہتے کہ سنت ہے, کچھ کہتے مباح ہے. مباح مطلب آپشنل, نہ آپ کو ثواب ملے گا, نہ کوئی فائدہ ہوئے گا, نہ گناہ ملے گا. آپشنل, کرنے کا کرو, نہیں کرنے کا مت کرو. لیکن اکثر علماء کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. شیخ ناصر الدین البانی بھی کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. اگر آپ پڑھیں گے, حدیث میں لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 698, اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی. ایک دوسری حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا. کئی حدیث ہے. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 میں کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 17 حدیث نمبر 699, اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہیلمٹ تھا. ایسی کئی حدیث ہے. اور شیخ ناصر الدین البانی کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا, ایکسپٹ فار جب وہ احرام کی حالت میں تھے. تو اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے, کچھ علماء کہتے ہیں مباح ہے, لیکن اکثر کہتے ہیں سنت ہے. یہاں ہمارے
जो सिर को ढकने का अक्सर तरीका आम तो मुसलमानों में, जो हिंदुस्तान में, वही टोपी। तो एक लेवल हो गया दाढ़ी, दूसरा हो गया टोपी। ये टोपी जो मैं पहन रहा हूं बहुत सस्ती है, 30 रुपए की है, 30 रुपए की। थोड़ी अच्छी क्वालिटी लेंगे तो 50 रुपए की, और अच्छी लेंगे तो 75 रुपए की। ये टोपी मामूली टोपी है, एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हाँ, इससे लोगों को डर क्या और पहनने में मुश्किल क्या। ना महंगी है, अब कुछ टोपी महंगी होती 200 रुपये, 1000 रुपये, तो कुछ लोग माशाल्लाह अच्छी टोपी पहने। मैं सस्ती टोपी पहनता हूं 30 रुपए की, लेकिन सिर को ढाको। अगर आप नौकरी करने जा रहे, आपका बॉस, आपका मालिक अगर कहा भाई टोपी मत पहनो, ठीक है भाई टोपी को घिसे में डालो, लेकिन जब नौकरी से बाहर निकले उस टाइम तो पहनो। वो थोड़ी बॉस आपको तनख्वाह दे रहा है, तो उस टाइम तो पहनो। मुसलमान अक्सर क्या करते, जब मस्जिद में जाते नमाज पढ़ने की टोपी पहनते, मस्जिद के बाहर निकलते टोपी अंदर डालते। क्यों? नमाज के लिए पहनते, अच्छी बात है, टोपी पहनते अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम नमाज के टाइम पे तो सिर को ढाक रहे। लेकिन नमाज के बाहर निकले तो टोपी खीसे में। नमाज के वो टोपी पहनना अच्छी बात है, फर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम नमाज के टाइम पे तो हम अपना सिर ढाके, अच्छी बात है। लेकिन जब नमाज के बाहर निकलते टोपी क्यों निकालते? कहीं लिखा है कि टोपी निकालो तो हमेशा पहनो ना, नमाज में जब पहन रहे तो बाहर भी पहनो ना। मैं क्योंकि बम्बई शहर में रहता हूं, बम्बई वालों से अगर आप पूछेंगे, क्या अपने दादा से पूछो, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले बम्बई शहर में अगर किसी को टैक्सी में सैर करने का होगा तो क्या करेंगे? वो देखेंगे टैक्सी ड्राइवर दाढ़ी टोपी वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाढ़ी टोपी वाले ईमानदार है, ये दाढ़ी टोपी वाला मुझे घुमाएगा नहीं। तो लोग अक्सर, चाहे मुसलमान या गैर मुस्लिम हो, वो गैर मुस्लिम भी ढूंढता था कि टैक्सी ड्राइवर अगर दाढ़ी टोपी वाला है तो मुझे वो बेवकूफ नहीं बनाएगा। अगर किसी को कुछ दुकान से खरीदने का है तो कोशिश करेगा कि दुकानदार है वो दाढ़ी टोपी वाला है तो ये मुझे बेवकूफ नहीं बनाएगा, ये मुझे चीट नहीं करेगा। क्योंकि उनके जहन में एक सोच थी, ये गैर मुस्लिम भी सोचते थे कि ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे, भले मैं इनकी बात मानूं या ना मानूं, ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे। इतनी इज्जत थी दाढ़ी और टोपी की। ये कभी की बात है, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले, जब मैं पैदा नहीं हुआ था। मेरी उम्र माशाल्लाह 50 साल से कम है। लेकिन आज अगर बंबई में आप दाढ़ी टोपी पहने तो लगता है ये तो भाई गुंडा है ना, दादा आ गया। तो आज किसको दादागिरी करने का है तो वो दाढ़ी टोपी, ये सोच बन गई, सोच बदल गई। और बदलने की वजह क्या है? हो सकता है कुछ हमारे मुसलमान गलतियां कर रहे, कुछ मुसलमान गलती करते मीडिया उसे उछालती है और ऐसा पेश करती है कि हर दाढ़ी टोपी वाला गुंडा है। तो भी गैर मुसलमान का नजरिया बदल गया है, दाढ़ी टोपी वाला मतलब बच के रहने का। हो सकता है कि ये आदमी सही नहीं है, तो मीडिया अभी गलत पिक्चर पेश करने लगा दाढ़ी और टोपी का, और लोग दाढ़ी और टोपी से दूर भागने लगे। हम मुसलमान भी, दाढ़ी टोपी में क्या है, इस्लाम तो ही दाढ़ी टोपी में, और वो दूर भागने लगे। लेकिन मैं कहता हूं, मान भी लो क्या ये नजरिया बन गया है आम माहौल कि दाढ़ी टोपी पहनने वाला सही इंसान नहीं। कम से कम आप दाढ़ी टोपी पहनो, साबित करो कि मैं तो अच्छा हूं, बाकी क्या छोड़ो, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो सच बोलता हूं, मैं तो हक बोलता हूं। इसीलिए जानबूझ के बाकी लोग, अगर मीडिया खराब कर रही है इस लेबल को, ये लेबल जो इतने सालों से आ रहा है, सैकड़ों सालों से, इस लेबल को अगर मीडिया आज खराब कर रही है तो हम इस नजरिए को बदल सकते। हम क्यों नहीं इस नजरिए को बदले, क्यों नहीं बदले? लेकिन हम मुसलमान पीछे हटते। ये लेबल और ये हुक्म जो अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है,
क्यों न उसको हम अमल में लाए। ये लेबल हुआ दाढ़ी और टोपी का। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। तो आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को, वो बता रहे थे कि टोपी लगाना कैसा है। अब आप लोग अल्लामा हाफिज़ जलालुद्दीन कासमी को सुनेंगे, उनका क्या ख्याल है टोपी लगाने के मुताल्लिक, वो क्या कहते हैं कि टोपी लगाना कैसा है। अल्लामा जलालुद्दीन कासमी। टोपी का भी मामला यहाँ है। टोपी, पता नहीं इनको जाहिर से क्या ताल्लुक, कितनी दिलचस्पी है। हालांकि अल्लाह क्या जाहिर को देखता है जी नहीं, बातिन के ऊपर फैसला होता है। दलील दलील ये हदीस पाक। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। रवाहु मुस्लिम फी किताबिल बिर्रि वसिलति वल आदाब। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस पाक वैसे किताबुल बिर्रि वसिलति वल आदाब के अंदर रावी जैसा कि मालूम हुआ हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमलों को देखता है। दिल पहले है, अमल बाद में। पता ये चला कि दिल पहले आदमी का सही होना, पहले आदमी का अकीदा सही होना, बाद में आमाल का मामला है। यहां तो चाहे अकीदा कितना ही खराब हो, लेकिन अगर आदमी सिंजे के लिए बैठे तो टोपी लगा ले, इसलिए कि टोपी नहीं लगाएगा तो जरा हाफिजा उसका कमजोर हो जाएगा। ये पता नहीं उन्होंने कहां से निकाला। लिहाजा आदमी जब सिंजे के लिए बैठता है तो टोपी नहीं मिलती तो दस्ती निकाल करके रख लेता है, और दस्ती भी नहीं मिलती तो हाथ रख करके बैठ जाता है। इतनी जरूरी हो गई टोपी, क्या जरूरी है? कहते हैं नमाज में टोपी जरूरी है, जरूरी है क्या? जरूरी नहीं। दलील दलील ये हदीस पाक। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल उक़ीमतिस सलातु फसव्वा अन्नासु सुफूफहुम फखरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतक़द्दम वहुवा जुनुबुन थुम्मा क़ाल अला मकानिकुम फखरज फग़तसल थुम्मा खरज वरासुहु यक़्तुरु माअन। रवाहुल बुखारी फी किताबिल अज़ान। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक को ऐसे ही किताबुल अज़ान के अंदर लाए। जरा हदीस देखिए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, और से सुनिए, टोपी 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 का मामला चल रहा है और ये रिवायत बुखारी में है और किताबुल अज़ान में है। उसके बाद में एक बहुत दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं आज, यहां से यही ले जाओ जो अब इसके बाद बताने जा रहा हूं। क्या? पहले ये टोपी वाला मामला हल कर लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इकामत कह दी गई, उक़ीमतिस सलात, नमाज के लिए इकामत कह दी गई। हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, इकामत सलाह, इकामत सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हो गई? अच्छा, फसव्वा अन्नासु सुफूफहुम, यही बात बतानी है मुझे, अभी बाद में बताऊंगा दूसरी हदीस करके। लोगों ने अपनी सफाई दुरुस्त कर ली। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से निकले, फखरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतक़द्दम, आप बढ़े कहां? मुसल्ले के ऊपर, वो हुआ जुनूबुन, और आप उस वक्त जुनूबी थे। जुनूबी माने आपको नहाने की जरूरत थी, जिसके बगैर आदमी पाक नहीं होता, वो हुआ जुनूबुन। और अचानक आपको मालूम हो गया कि मैं जुनूबी हूं, नहाने की जरूरत है मुझे। आपने फरमाया मकाल अला मकानिकुम, तुम लोग अपनी जगह पे ठहरे हो, मैं आ रहा हूं। और आप वहां से निकले, फरजा फग़तसल, आप लौटे और आपने गुस्ल फरमाया, सुम्मा खरजा, फिर आप लौटे और जब मुसल्ले पर आए, अल्फाज देखिए, वरासुहु यक़्तुरु माअन, और आपका सर पानी टपका रहा था, यानी आपका सर खुला हुआ था, टोपी नहीं थी, इसलिए कि लफ्ज़ रास है। अब कोई शरीर मुक़ल्लिद ये कहे कि कैसे ये साबित हुआ कि टोपी नहीं थी? ये का कहात है, लड़िए का आगे काट बहाएंगे। लड़िए का आगे काट बहाएंगे। हदीस में है हेड, वरासु हिज हेड व सोवरिंग वाटर, यानी आपके सर से टोपी तो दी, सर का लग गए। लिहाजा अहले हदीस ये बोलता है कि इस मकाम पर तुम्हारी फुक़ाहत कहां गई? टोपी में उलझ कर रही गई क्या? फुक़ाहत तो ये थी कि रास से इस्तेमाल किया जाता, वह रासुहु यक़्तुरु माअन, आपके हेड से, आपके सर से, रास मींस हेड, न कि टोपी। वो एक क्या हुआ, तो एक टीचर था, वो बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चे रटो, चेयर माने घोड़ा, चेयर माने घोड़ा, चेयर माने। इंस्पेक्टर आ गया, उसने देखा कि चेयर माने घोड़ा रटा रहा है, और सारे बच्चे चेयर माने घोड़ा, चेयर माने घोड़ा, चेयर माने घोड़ा पढ़। उसने बुलाया टीचर,
क्या ये और बेवकूफ है? कहा कि चेयर माने घोड़ा पढ़ा रहे हो लड़कों को? कहा कि हाँ। क्यों? कहा कि चेयर माने घोड़ा होता है? कहा कि क्या 200 रुपए में चेयर माने कुर्सी पढ़ाऊंगा? मौलवियों की तनख्वाह जरा अच्छी करो भाई, मौलवियों की तनख्वाह जरा अच्छी करो। हाँ, सबक लो जरा, मौलवियों की तनख्वाह जरा अच्छी करो भाई। अब कहेंगे मौलवी है, मौलवी की वकालत कर रहा है। कहा कि 200 रुपए में चेयर माने कुर्सी पढ़ाऊंगा, तो ये बेचारे ऐसे ही है। अब रास का मतलब होता है सर, टोपी तो होती नहीं है। अब उसी टीचर की तरह हो जाएंगे, ये रास माने टोपी। वरासुहु यक्तुरु माअन फसल्ला बिहिम, रवाहुल बुखारी फी किताब अल-अज़ान। आपके सर से पानी टपक रहा था, टोपी नहीं थी, आपने इसी हालत में तमाम सहाबे किराम की इमामत फरमाई। टोपी जरूरी नहीं, टोपी ये नमाज का जुज नहीं है, ये शरीयत का कोई हिस्सा नहीं है कि अगर आदमी सर पे टोपी ना रखे तो उसकी नमाज के ऊपर कोई असर पड़ेगा या उसके इस्लाम के ऊपर कोई असर पाएगा, जैसा कि बुखारी शरीफ की इस रिवायत से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ। अब आइए सब के बारे में बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा सब दुरुस्त कर लो, तसव्वुनासु सुफूफहुम, सफाई लोगों ने दुरुस्त कर ली। कैसे सफाई दुरुस्त की जाती है? तशरीह की गई हदीस में बुखारी में, जिसका हवाला दिया गया बुखारी। और ये मजाक भी करते हैं, कहते हैं चूंकि हदीस ये लोग इश्क से नहीं पढ़ते, भाई तुम लोग इश्क से पढ़ो, हम लोग तो मोहब्बत से पढ़ते हैं। शेर है, पढ़ता है बुखारी जो बिला इश्क मोहम्मद, पढ़ता है बुखारी जो बिला इश्क मोहम्मद, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती है। बोलते तो हमें इश्क से नहीं पढ़ना, हमें तो मोहब्बत से पढ़ना है, मोहब्बत से पढ़ना है, इसलिए कि शरीयत का मुतालबा मोहब्बत कहना के इश्क का। तो